So let's continue the phasor diagram. We have seen that phase constant angle measured in anti-clockwise direction from velocity axis in phasor diagram to the line joining from the center to the position of particle on the circle. So in phasor diagram, so when particle has, now in phasor diagram, if I just do quick revision, this is velocity axis, this is displacement axis or x, okay. So you have to, again, displacement of particle is given. Displacement of particle again, if you take the circle is a two-dimensional. Circle is two-dimensional because if some particle is moving on circle, it has got two dimensions, x-axis and y-axis. Here on circle, on a one dimension we have taken velocity, on the second dimension we have taken displacement, and if we have taken y-axis as a displacement, then x is a sine of omega t plus psi. Here the particle, we assume particle is on the circle moving in anti-clockwise direction with angular velocity omega. So when particle, and we measure to calculate psi gives the phase constant and t is equal to 0, what is the condition of the state of the motion. So when particle starts from here, so line joining means angle measured in anti-clockwise direction from the positive velocity axis, okay, and with the line joining the center to the particle on the circle. तो this अगर यहाँ से किया शुरू तो this is 0, यहाँ पे था तो line joining ये हो गया, this is 90, यहाँ पे था तो line joining ये हो गया, this is 180, यहाँ पे particle तो line joining. And 2-3 questions we have done also. Let's solve few questions and then it will be more clear. Write equation of SHM. Write equation of SHM of omega angular frequency. Of omega angular frequency and amplitude capital A. If particle is situated at a by root 2 at t is equal to 0. So particle is situated at a by root 2 at t equal to 0 and is going towards mean position. So going towards mean position. So if I just draw the first, what is the state? Let's say state of the system is, this is my mean position, this is plus a, particle is at a by root 2. Particle यहाँ पे है और it is going towards mean position. So this is t, means we have taken this t as a 0. So this can be converted into this as a phasor diagram. This is velocity, this is displacement. Now particle का displacement a by root 2 है, तो displacement is represented on the vertical line. तो a by root 2 पे यहाँ पे हो जाएगा. This is a by root 2. पॉजिटिव है तो इधर अभी फॉर अगेन अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, सिर्फ फाई फाइंड करना है, साई फेज कांस्टेंट, वो आ गया तो अपना काम हो जाता है. तो फेज कांस्टेंट के लिए व्हाट वी हैव टू फाइंड अ लाइन. विच लाइन? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजिशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सर्कल. देन एंगल फ्रॉम द वेलोसिटी एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज, दैट बिकम्स द साई. सो हियर, सो अभी पार्टिकल सर्कल पे कहाँ पे, यहाँ पे कि यहाँ पे? टू नो दिस, ड्रॉ लाइन, जैसे इस सर्कल को यहाँ पे कट कर रहा है. अभी पार्टिकल यहाँ पे कि यहाँ पे कि दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. पार्टिकल इज गोइंग टुवर्ड्स मीन पोजिशन. तो टुवर्ड्स मीन मीनिंग व्हाट, कि वेलोसिटी इज नेगेटिव. वी हैव टेकन दिस एज अ पॉजिटिव. ओके, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव. तो वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इफ यू ड्रॉप द परपेंडिकुलर, दिस इज माई वेलोसिटी एक्सिस, तो दिस वेलोसिटी इज नेगेटिव. तो पार्टिकल यहाँ ना हो कि यहाँ पे, तो यहाँ पे, सो नाउ लाइन ज्वाइनिंग ये हो गया. तो फेज कांस्टेंट क्या होगा? तो एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द वेलोसिटी एक्सिस, ओके, टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द
पोजिशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सर्कल, तो ये एंगल अपने को निकालना, दिस बिकम्स माई शाई, दिस इज माई टी इज इक्वल टू 0. टू नो शाई आई कैन, लेट्स फर्स्ट फाइंड दिस, थीटा आ जाएगा, थीटा विल बी दिस, ये हाइट a/√2 है तो दिस इज ऑल्सो a/√2, एंड सिंस यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिया है तो इसको भी एम्पलीट्यूड लेना होगा तभी एंगल आएगा, तो साइन थीटा विल बी दिस परपेंडिकुलर a/√2 by a, that is 1/√2. So theta becomes pi/4. लेकिन अपने को कौन सा ये शाई ये वाला होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम दिस, तो दिस इज माई शाई, ये शाई नहीं है तो शाई क्या हो जाएगा, शाई विल बी pi minus theta, so that is 3pi/4. So equation of SHM becomes a sine of omega t plus 3pi/4. Just see, very easily without doing any mathematics we can solve it. But method to phasor is a method which is developed for developing the SHM. ठीक है, equation. Okay, the same question you can solve by mathematics also. क्या t is equal to 0, particle is at a/√2 and velocity is negative. Next question. If initial position of particle performing SHM, if initial, now it's a second application of phasor diagram, ठीक है ना, तो phasor diagram में second application ये रहेगा. First write question, then I will mention it. Initial position of particle performing SHM is plus a/2. Initial position of particle performing SHM is plus a/2. And moving towards center, having angular frequency omega. Find minimum time when it will be at, find minimum time when it will be at, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इट विल बी एट मीन्स सब क्वेश्चन, फर्स्ट एट -a/2, सेकेंड एट मीन पोजीशन, थर्ड -a, फोर्थ +a. Now in this question also the phasor will help us. So now let's see. Let's say पहले क्या दिया, let's say do it mathematically. कहाँ पे particle? This is my mean position, this is my plus a/2 पे है particle. तो this is my t is equal to 0. यहाँ से मैं टाइम काउंट करना शुरू कर रहा हूँ and it is and moving towards center and particle move हो रहा है किधर, particle is here and it is going towards mean position. This is plus a, this is minus a. तो तुमको फाइंड करना है कि मिनिमम टाइम जब वो -a/2 पे आ जाए, मतलब -a/2 मीन्स व्हाट, पार्टिकल कहाँ पे आ जाए, -a/2 ये हो गया, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, अगेन ये ऐसे आएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो कितना टाइम लगा, मिनिमम टाइम. ये -a/2 पे काफ़ी बार आएगा वापस, मतलब यहाँ से यहाँ फिर लौट के भी आएगा, फिर इधर, फिर तो मिनिमम टाइम. तो मिनिमम टाइम में जब फर्स्ट टाइम ये जाएगा इधर, सेकेंड मीन पोजीशन पे मीन्स यहाँ से यहाँ तक है मीन पोजीशन, थर्ड -a मीन्स प्लस a/2 से यहाँ तक है, एंड फोर्थ -2 से, मतलब यहाँ से प्लस a, तो प्लस a पे कब आएगा, जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर जब लौट के यहाँ आएगा देन दैट विल बी द प्लस a पे पोजीशन होगा. तो दो मेथड हो सकता है, एक तो मैथमेटिकल मेथड कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ दिस SHM. तो कैन यू टेक x इक्वल टू a sin omega t, और कैन यू टेक x इक्वल टू a cos omega t, और वी टेक समथिंग एल्स, तो दैट डिपेंड्स ऑन द, और आई विल टेक जनरल क्या इक्वेशन, x इज इक्वल टू a sin of omega t plus psi. So psi will decide from where we have started counting the time. So time t is here. तो इसके लिए तुमको पहले निकालना होगा कि what is the equation
for this position when t is taken at this position, तो वो I think that comes out, तो that comes out, तुम इसके लिए भी फेजर यूज कर सकते हो, तो फेजर यूज किया तो क्या हो जाएगा, फेजर यूज किया टू फाइंड साई, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल इज एट प्लस a by 2, पार्टिकल इज एट प्लस a by 2, यहाँ पे प्लस a by 2, अभी पार्टिकल्स सर्कल पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव बिकॉज गोइंग टुवर्ड्स मीन, तो ये यहाँ पे होगा, तो ये मैंने लाइन किया ज्वाइन, तो ये जो एंगल होगा दैट विल बी माई साई, फेज कांस्टेंट वही होगा, तो यहाँ पे ये एंगल तुमने किया फाइन थीटा, so phase constant psi will be pi minus theta, so this is a by 2, so this length is also a by 2, तो ये जो right angle, this length is a, तो ये जो right angle triangle उसमें मैंने फाइंड किया sin theta will be a by 2 by a, so that becomes half, so theta is pi by 6, तो psi क्या हो जाएगा, this psi will be pi minus theta, तो psi will be 5 pi minus 6, तो ये इक्वेशन ऑफ SHM आ गया। t कहाँ पे जीरो है वो इम्पोर्टेंट है, तुमने कहाँ पे t जीरो लिया है वहीं उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन आएगा, बिकॉज अगर तुमने ले लिया x इक्वल टू a sin ओमेगा t मीन्स पार्टिकल मीन पे और ऐसे जा रहा है, जबकि पार्टिकल यहाँ पे और ऐसे जा रहा है, तो यू कैन नॉट टेक हियर x इक्वल टू a sin ओमेगा t, बिकॉज इफ यू टेक x इक्वल टू a sin ओमेगा t मीन्स तुमने t जीरो यहाँ पे लिया है at mean position, particle is going towards right, ठीक है, you cannot take y is equal to x equal to a cos omega t, अगर तुमने cos omega t लिया मीन्स पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, it is going towards right, बट पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ से, मुझे यहाँ से टाइम काउंट करना शुरू करना है, so we have to take t0 here, not we cannot take t0 here, okay. Now after this, once it is confirmed that equation of motion is x is equal to a sin of ओमेगा t plus 5 pi by 6, अभी अपने को पहला क्वेश्चन जो पहला करना है उसमें क्या है, फाइंड कब वो a by 2 पे, तो पुट हियर फर्स्ट x is equal to minus a by 2, पुट इट हियर, तो minus a by 2 is a sin of ओमेगा t plus 5 pi by 6, ये मैथमेटिकली मैं कर रहा हूँ, तो दिस कैंसल्स, तो दैट इज माइनस हाफ इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t plus 5 pi by 6, साइन नेगेटिव कौन से है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में क्या हो जाएगा, साइन हाफ किसके लिए होता है, तो पाई बाई 6 के लिए, तो व्हेन यू रिमूव दिस, तो ओमेगा t प्लस 5 पाई बाई 6, दिस विल बी इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 6, तो 7 पाई बाई 6 और 2 पाई माइनस पाई बाई 6, सो 11 पाई बाई 6, देखो इसके लिए this for this angle it will be minus half, sin is negative in third and fourth one, तो मिनिमम कब होगा, जब ये लेंगे तब मिनिमम होगा, ये लेंगे तो ये लेंगे मतलब क्या हो गया, पार्टिकल जो मिनिमम चाहिए, मिनिमम मतलब जो फर्स्ट टाइम यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये लेंगे मतलब वो यहाँ से आया फिर वापस लौट के यहाँ आया, मतलब यहाँ से यहाँ फिर वापस लौट के यहाँ, फिर उसके लिए ये टाइम होगा, ये एंगल होगा, तो यहाँ पे ओमेगा t becomes this minus this, so that is 2 pi by 6, so that is pi by 3, so time will be pi by 3 omega, omega you can write 2 pi by omega t, put this value, so pi by 3 into 2 pi by t, so that is t by 6 cancel, so t by 6 मतलब टोटल टाइम पीरियड t by 6 में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, मैथमेटिकल है, एंड मैथमेटिकल है तो मिस्टेक्स के चांसेस बहुत हैं, बट phasor will help you to solve this question without doing such kind of mathematics. So let's go by the phasor. Very आसान, it's very easy, काफ़ी आसान है उससे, तो पहले तो तुम phasor में क्या था, phasor में तो पहले तुम phasor ड्रॉ कर दो, फिर this is velocity axis, this is displacement axis, this is velocity, पार्टिकल कहाँ पे है पहले वो रिप्रेजेंट कर दो, तो पार्टिकल इज एट प्लस a by 2 एंड वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब पार्टिकल यहाँ पे है, दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, दिस इज a by 2, this one, this is my a, because
वेलोसिटी होता तो वी कुड हैव टेकन वेलोसिटी, दिस रेडियस एज अ वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड विल टेक एम्पलीट्यूड एज अ, वी कहाँ से कहाँ आना है, उसको -a/2 पे आना है, तो -a/2 ये है, दिस इज -a/2, तो -a/2 मीन्स डिस्प्लेसमेंट -a/2, तो सर्कल पे पोजीशन किधर है वो तुम निकाल दो, तो सर्कल पे पोजीशन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, तो इट इज लाइक दिस कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम वो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फर्स्ट टाइम यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये पार्टिकल व्हाट वी हैव कन्वर्टेड SHM इनटू फेजर, कि वी आर अज्यूमिंग कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो यहाँ से मिनिमम टाइम मतलब, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इट इज -a/2 के लिए पार्टिकल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ कब है, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा, देन दिस इज द पोजीशन, जब पार्टिकल यहाँ से जब वापस लौट के जाएगा तो दिस विल बी द पोजीशन। अपने को मिनिमम टाइम ये करना है फ्रेंड, तो तुमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो एग्जैक्टली पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आना है, ये एंगल हो गया मान लो थीटा, ये टोटल एंगल इज थीटा, बट थीटा अपने को पता हो जाए, अपने को पता है कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन फेजर डायग्राम, सो वी कैन राइट ओमेगा इनटू टी इज इक्वल टू थीटा, सो टी इज ओमेगा बाई थीटा बाई ओमेगा हो जाएगा टाइम, एंड ओमेगा इज हाउ मच 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड इज टी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे फिर, तो तुमको ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल निकालना है, तो पहले तुम ये एंगल निकाल लो, ड्रॉप द परपेंडिकुलर, हो जाएगा ये एंगल क्या है, लेट्स से दिस इज θ1, दिस इज θ2, θ1 प्लस θ2 इज थीटा, सो θ1 तुमको क्या हो जाएगा इन दिस OPA, तो इन दिस ट्रायंगल इफ यू जस्ट सी अगेन ये है θ1, तो दिस विल बी आल्सो θ1, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये θ1 तो ये भी θ1, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा तो ये परपेंडिकुलर ये लेंथ, तो sin θ1 इज हाफ a/2 by a, so θ1 is π/6, दिस इज θ2, तो ये भी हो जाएगा θ2, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में साइन ऑफ θ2 इज अगेन हाइट बाई हाइपोटेनियस, तो अगेन दिस इज हाफ, सो θ2 इज π/6, तो टोटल एंगल कितना हो गया, सो थीटा बिकम्स π/3, सो ये एंगल पाई, सो टाइम पीरियड क्या, t इज इक्वल टू π/3 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज 2 π/t, so that becomes t/6, just see, so powerful, very easy, very important, मैथमेटिकली हम लोगों ने पूरा मैथ सॉल्व किया, यहाँ पे जस्ट तुमको एंगल निकालना, एंगल में जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल ही निकालना है, क्लियर है। नेक्स्ट इज मीन पोजीशन, सो मीन पे अगेन तो फिर से फेजर ड्रॉ करो, फेजर में क्या, अगले से सेकंड के पहले अगर मैं तुमसे पूछ लूँ पार्टिकल यहाँ से कर रहा है शुरू, तो कितने टाइम में वो वापस आ जाएगा, तो 1 टाइम पीरियड है ना, यहाँ से किया शुरू, तो वापस जब पार्टिकल एक सर्कल करे कंप्लीट, तो कितना एंगल हो गया, 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, एंड इसी बोलते हैं टाइम पीरियड, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। पार्टिकल यहाँ से किया शुरू, वापस लौट के वहाँ आ गया, वापस लौट के यहाँ पे आ गया, तो इट इज अ टोटल एंगल इज 2 पाई, लेट्स से पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, दिस एंगल इज लेट्स से π/4, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो एंगल पता है π/4 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, टी इज इक्वल टू π/4 इंटू ओमेगा इज 2 π/t, that is t/8, so it's so simple. So phasor diagram is, because if you go mathematically it will be very confusing, some questions will be such kind where the confusion will persist. तो जो सेकंड है इसमें, सेकंड में क्या करना है, तो सेकंड में तुमको पहले इनिशियल उसका लोकेशन फिक्स करना है, तो उन्होंने फिक्स किया है, इट इज एट a/2 प्लस a/2 पे है, प्लस a/2 पे, तो सर्कल पे कहाँ है, तो सर्कल पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी होगा बिकॉज वेलोसिटी इज नेगेटिव,
इसको यहाँ से अभी कहाँ आना है, मीन पोजीशन, मीन, जैसे ही दिस इज माई वेलोसिटी, दिस इज माई वाई और एक्स, सो दिस इज माई मीन पोजीशन। तो वो यहाँ से यहाँ आ गया है। ये एंगल निकाल लो, दिस थीटा, ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा। तो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल दिस इज a/2, दिस इज रेडियस दैट इज a, तो साइन थीटा विल बी हाफ, थीटा विल बी π/6। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा, तो ओमेगा इंटू टी इज π/6, सो टी इज π/6 ओमेगा 2π/t, ओमेगा इज टू t/12। तो इसको बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आने में t/12 टाइम लगा, t/12, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल टाइम था t/6, तो ये t/12, तो ये भी t/12, मतलब इधर से जितना इधर उतना ही इधर, उतना ही टाइम सेम लगेगा। थर्ड और फोर्थ खुद से ट्राई करो, आई होप आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं आंसर पॉज कर लो, सॉल्व करो, मैं आंसर अभी बोल देता हूँ, तो पॉज कर लो। जो इसका आंसर है दैट इज t/3 and its answer is 5t/6. This is the answer. Okay. Now, अब हर एक क्वेश्चन में फेजर यूज होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जहाँ पे अपने को फेज कांस्टेंट और टाइम निकालना हो वहाँ पे हेल्प हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, find the distance traveled by a particle of time period capital T. Find the distance traveled by the particle of time period capital T and amplitude capital A. in time t/12, capital T/12, starting from rest. So find the distance traveled by a particle of time period t, amplitude a, in time t/12, starting from rest. तो आई होप पॉज करके सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन इज दिस इज मेन पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट मतलब कहीं भी हो सकता है, चाहे लेफ्ट या राइट, तो कुछ भी ले लो। दिस इज प्लस a, यहाँ से वो शुरू कर रहा है t = 0। तो t/12 टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्वेश्चन ये है। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल करना निकालना है तो फेजर विल नॉट हेल्प यू। हाँ, फेजर विल हेल्प यू टू डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ SHM because T0 is here, so that from there, so from phasor you can find what is the phase constant. After that you have to find the, before that some general information। तो पहले तुमको सिर्फ सॉल्व कर लो, पॉज करके सॉल्व करो, मैं आगे का बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखते हो टोटल टाइम पीरियड इज t, मतलब पार्टिकल ने यहाँ से किया शुरू, यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस, फिर यहाँ, फिर वापस, पार्टिकल इज मूविंग, तो यहाँ से यहाँ, तो ऐसे कितने क्वार्टर हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल क्वार्टर इज 4, तो एक क्वार्टर का टाइम पीरियड t/4 हो जाएगा। मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो टाइम पीरियड विल बी, टाइम टेकन विल बी t/4। फिर इसको वापस यहाँ से आना है तो t/4, बिकॉज सिमेट्रिकल मोशन है, दिख रहा है, जो जाने में वही वापस आने में, बिकॉज जाने में जो कंडीशन है वही वापस आने में कंडीशन है, इट्स अ सिमेट्रिकल मोशन। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में
टोटल टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। ऐसे 4 क्वार्टर है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो एक क्वार्टर का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T/4। सॉरी, एक क्वार्टर का टाइम टेकन क्या हो जाएगा, मतलब इसको यहाँ से यहाँ आना है तो टाइम टेकन विल बी T/4। तुम फेजर से भी तुम कर सकते हो, वो मीन से किया शुरू, मीन से वो यहाँ तक आया, तो ये एंगल कितना हो गया, दैट इज π/2। तो ओमेगा इंटू टी, मीन से एक्सट्रीम तक, मीन से एक्सट्रीम तक, ओमेगा इज इक्वल टू π/2, सो टी इज π/2 इंटू ओमेगा इज 2π/t, सो दैट इज T/4। सो फॉर अ π/2 के लिए एंगल टाइम टेकन इज T/4। π/2 मीन्स 1 क्वार्टर, वेर स्टार्टिंग फ्रॉम मीन। सेम हियर, यहाँ से कर रहे हैं शुरू, तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, दैट इज 1 टाइम पीरियड, इट इज T/4 ओनली। ओके, यहाँ पे इफ आई सो यहाँ पे क्या, कहाँ पे पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजिशन, यहाँ पे, तो एक्सट्रीम से ऑब्वियसली ऐसे ही आने वाला है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना लगा, T/4, 1 क्वार्टर है। और कितने टाइम में अपने को फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल T/12, मतलब पार्टिकल यहीं पे कहीं पे है, T/12 इज लेस देन T/4। तो पार्टिकल अगर एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है तो T/12 में निकालना है, पार्टिकल मतलब इसी के बीच में कहीं पे है। पहले तुम पहले ये कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो। अभी तुमको पता है कि अगर एक्सट्रीम से शुरू होता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, तो x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t, है ना, ओमेगा इज 2π/t। यहाँ पे x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, x इज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मैंने यहाँ पे, तो x इज जस्ट हियर, पुट t इज इक्वल टू 0, x इज a, मैंने पुट किया x मीन्स I just put t is equal to T/12, तो x क्या हो जाएगा, x will be a cos of omega is 2π/t into T/12, t cancel, this is 6, so x is equal to a cos of π/6, so that is cos of π/6 means 30, so a √3/2 ये हो जाएगा। और मैक्सिमम लोग इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, बट इट इज़ नॉट अ डिस्टेंस। वाई? बिकॉज ये जो पोजीशन आया है, ये a/√3, कहीं मान लो यहाँ पे, दिस इज माई a√3/2, तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ, दिस इज माई x, वी आर मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर। SHM इज नॉट अ लीनियर मोशन, कीप दैट इन माइंड, SHM इज नॉट अ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन होता तो क्या होता, displacement equal to distance. SHM is not a linear, its the direction is changing, so it's not a linear motion. In linear motion, in straight line motion, distance equal to displacement. But यहाँ पे particle का direction भी change हो रहा है, तो यहाँ पे distance won't be equal to displacement. तो ये जो value आएगा, if you put here t is 0, x is a, मतलब यहाँ से ये position तुमको दिया हुआ है, initially तुमको ये दिया हुआ है position x1, ये तुमको ये x2 हो गया, मान लो when you put t equal to 12, this becomes x2, तो ये x2 हो गया। अपने को क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस मतलब क्या होगा, वो यहाँ से यहाँ, ये वाला, दिस विल बी माई डिस्टेंस, बिकॉज इसने यहाँ से शुरू किया, तो दिस इज माई डिस्टेंस। मैक्सिमम लोग इसको डिस्टेंस लिखते हैं, सो कीप दैट इन माइंड, दिस इज नॉट डिस्टेंस, बिकॉज वी आर मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द mean position, we are measuring displacement from the mean position. तो distance travel क्या हो जाएगा, तो distance will be, तो that is this a minus this x2 हो जाएगा, a minus a √3/2, so that is a 1 minus √3/2. This is the distance traveled in t/12 seconds. क्वेश्चन लिखो, टू पार्टिकल कैपिटल P and कैपिटल Q, टू पार्टिकल कैपिटल P and कैपिटल Q are executing
SHM across same straight line. SHM across same straight line, whose equations are given as y of p is a sin omega t plus psi, whose equations are given as yp equal to this and yq equal to a cos omega t plus psi 2. तो ये कंटिन्यू, an observer at t is equal to 0, an observer at t is equal to 0 observes that the particle capital P is at a distance a by root 2, a capital A by root 2, amplitude capital A by root 2, moving to the right from the mean position O, while capital Q at root 3 by 2 A, capital A, moving to the left from the mean position O as shown. तो फिगर दिया हुआ है तुमको, फिगर इज गिवन, दिस इज माय mean position, this is P, this is Q. So P is going towards this, ये तुमको दिया हुआ है a by root 2, ये तुमको दिया है root 3 by a to root 3 by 2a. So T0 इसके लिए यहाँ पे है, इसके लिए यहाँ पे find psi 2 minus psi 1, find psi 2 minus psi 1, ये find कर, okay. So this is the application of phasor for finding time, for finding the phase constant. Try this question, let's see क्या आता है, and in the next video we'll continue the SHM again. So thanks a lot, stay safe, stay at home and keep watching Milestone Academy channel. Thank you.